Yes, everybody. First of all, I'm discussing the because of. Simply because means kyonki, of means kaki ke. But when it is making the phrase because of, owing to, by dint of, due to, they can be the same meaning. Because of means के कारण से. Because of my poor health, ill health, I could not attend my classes. Because of. Understand because of, everybody? Because of his not attending the class regularly, he was punished. Why he was punished? Because he did not attend the class. But if we can also say because of not attending the class, he was punished. Sir, और because of those reason. because of this के कारण से. Yes, sir. Because of ill health, I could not present in the paper. Because of, clear? Now I'm telling you, owing to means के कारण से, because of means के कारण से, by dint of के कारण से, due to के कारण से. All these phrases means के कारण से, due to. Okay, के कारण से, due to. Okay, due to late होने के कारण, I was not allowed to enter the meeting. लेट होने के कारण मुझे मीटिंग में एंट्री नहीं मिली. ड्यू टू, owing to being लेट होने के कारण, he was not allowed to enter the meeting. उसे मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं मिली. इन द सेम वे बाय डिंट ऑफ के कारण से, बिकॉज ऑफ के कारण से. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दीज आर द phrases which means के कारण से. Now about means लगभग होता है. Yes, for example, about 50 students attended the class. Near about means लगभग, approximately. About. Second use of about, मैं जाने वाला हूं. English, I am about to go. बोलो, बताओ इंग्लिश बताओ. मैं जाने वाला हूं, इंग्लिश बताओ. I am about to go. अब बताओ, वह जाने वाला है, अंग्रेजी बताओ. इंग्लिश, He is about to go. he is about to go. Very good. वह जाने वाली थी, अंग्रेजी बनाओ. वह जाने वाली थी. He is about to go. हैं? She was about to go. Very good. She was about to go. Very good. She was about to go. अच्छा बताओ, वर्षा होने वाली है. Rain is about to No, be. no, no. It is rain about to. It is used for the rain. It is about to rain. Okay, it is about to rain. वर्षा होने वाली है. वह खेलने वाला था कि वर्षा होने लगी. वह खेलने ही वाला था कि वर्षा होने लगी. बताइए इंग्लिश. He was about to He play. was about to play, but raining started. Now there is a time factor. He means here when he was about to play, not that when it started raining or when. अच्छा एक और है, started and begin to, both are same. When it began to rain. Begin to means वर्षा होने लगी. अब दूसरा प्रयोग से करो, वर्षा होने लगी. It began to rain. Begin is first form, began is second form, begun is third form. Okay, वर्षा होने लगी. It began to rain. अच्छा बताओ, वह स्कूल जाने लगा. बताओ,
वह स्कूल जाने लगा, ना? He began to go to He was school. going to वेरी school. गुड, he began to go to school, वेरी गुड, वह स्कूल जाने लगा। began to का प्रयोग समझ आ गया आपकी में? began to past tense है, began to है। अच्छा ये बताओ, अपने पिताजी को देखकर वह पढ़ने लगा। He started studying to see his father. सी देख कर क्या आएगी? seeing his father, देख कर, खाकर, मरकर, गिरकर, ing, इसे कहते हैं पार्टिसिपल। seeing his father, अपने पिता को देखकर, he began to study, पढ़ने लगा। begin to का प्रयोग सिखा रहा हूं मैं आपको। seeing his father, he began to study, वह पढ़ने लगा पिता को देख। तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस आने चाहिए जिससे कि यू कैन बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा बोलो, ऐसे कुछ छोटे सेंटेंस बोलो जो आपके बोलने में परेशानी करते हो। मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलो। हाँ, अपने, दूसरा बोल रहा हूं मैं, अपने पिताजी को देखकर वह पढ़ने लगता है, वह पढ़ने लगता है। अभी लगता है तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना, पढ़ने लगा तो पास्ट टेंस था, इसलिए बिगेन टू। तो सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखकर वह पढ़ने लगा। he begins to study, begins to study, समझ आ गया begins का प्रयोग? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, Yes, sir. बात समझ आ गई आपके में? आई नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, Yes. ऐसे ही और बोलो, और सेंटेंस बोलो आप। मुझे घर जाने दो, अंग्रेजी बनाओ। मुझे घर जाने Let दो। me go home. वेरी गुड, लेट मी गो। Let me go home. उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। Let him go home. Let him go या home. लेट हर गो होम, वेरी गुड। अच्छा, उसको पढ़ने दो। Let him or her study. वेरी गुड, वेरी गुड। लेट हिम या हर स्टडी, वेरी गुड। अच्छा बताओ, आओ क्रिकेट खेलें, आओ सब क्रिकेट खेलें, बताओ। Come all of us play cricket. No, let us play cricket. We use let us when we are inviting everybody including ourselves. We use let us. There is a proposal. Hello, there is a proposal, प्रस्ताव होता है। अच्छा, आओ सब गीत गाएं, आओ सब गीत गाएं, बताइए। Let us sing a song. Very good, all let of us us sing a song. song. अच्छा, आओ भजन गाएं। Let us sing a Let us sing devotional song, devotional song. सर भजन को इमोशनल सॉन्ग कहते हैं। Devotional means भजन, devotee. Okay, devotional song means भजन। अच्छा, वेरी गुड, आप जान रहे हो अब तो धीरे धीरे। अब मैं सिखा रहा हूं आपको कैप्टन का प्रयोग। कैप्टन, कैप्टन और वेंटन। वह खाट पर लेटा ही रहा, बताइए। वह चारपाई पर लेटा ही रहा। he kept on proning on the ही kept on, देखो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस कैप्टन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही kept So on what is the lying meaning on the of cot. captain? He kept on lying on the So cot. what is the meaning of captain? कैप्टन और वेंटन का ये होता है लेटा रहा, इस सेंस में कैप्टन और वेंटन का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता ही रहा, he kept on studying. To study. ओके, वह भागता ही रहा, he kept on He kept on running. इंग फॉर्म आएगी। वह बोलता ही रहा, बताइए, वह बोलता ही रहा। He he kept kept on on speaking. he kept on speaking. speaking, very good। और बताइए, वह रोता ही रहा। He kept on He weeping. kept on crying. Very good, he kept on crying, he kept on weeping, he kept on wailing, very good। रोता ही रहा। हाँ, वह मुझे पीटता ही रहा। He kept on He beating kept me. on Very good, in beating me. he kept on beating me, very good। Yes, sir. कैप्टन का प्रयोग समझ आ गया ना? Yes, sir. कैप्टन वेंटन का प्रयोग समझ आ गया? इसमें कैप्टन इज आल्सो राइट, वेंटन इज आल्सो राइट।
kept is the second form, went is also the second form. अब इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज बता रहा हूं मैं आपको। वह खाना खाता ही रहता है, वह खाना खाता ही रहता है। He kept on eating नो food. नो 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 नो, He रहता है। kept. ही कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन, कीप हो जाएगी ना, ऐसा आएगी। ही He कीप्स keeps ऑन on eating. eating, very good. He keeps on taking his food, He eating, keeps on eating. very good. He Keeps. keeps on eating. अपने पिता को देखकर वह पढ़ता ही रहता है, बताइए। To his father, he keep on studying. Seeing his father, he keeps on studying, very good. और बताओ। रात 8 बजे तक वह पढ़ता ही रहा, बनाओ। Till 8 p.m. he keeps on studying. नो भैया, कीप्स आएगी। अब रहा भाई, रहा कैप्ट हो जाएगी, कीप की बेटा, कैप्ट होगी नहीं होगी, रहा। रहता है नहीं बोला है मैंने, रहा पास्ट टेंस हो गया। I kept reading till 8 o'clock in the night. ओके, till 8 o'clock he kept on eating, he kept on reading, he kept on studying, पढ़ता ही रहा। वेरी गुड, कैप्टन का समझ आ गया। और बताओ, वह स्कूल जाने ही वाला था कि वर्षा होने लगी, बताइए। He or she, he is about to go to school, but the rain started. When the train, टाइम फैक्टर तो when आएगा, that नहीं आएगा। When the rain started या when it began to When- rain, begin to का प्रयोग हो सकता है, you are also right, when it began to rain। अच्छा, अब आपने पूछा बिफोर, बिफोर का प्रयोग कैसे होगा? बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। अच्छा, बिफोर का फॉर्मूला है आफ्टर बिफोर वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे आफ्टर आफ्टर, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड वन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, अच्छा अंग्रेजी बनाओ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अंग्रेजी बनाओ। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। Patient died before the. नो 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 नो, सुनो। अच्छा बताओ, इसमें दो एक्टिविटी है, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, पहले कौन सा काम हुआ है? सर पहले रोगी मत। रोगी मर गया। रोगी मरा है ना पहले, सेंटेंस है डॉक्टर Yes, के sir. आने से पहले रोगी मर चुका था। पहला काम कौन सा है? अर्लियर वर्क क्या है? व्हाट इज अर्लियर वर्क? Yes, sir. पेशेंट डाइड, रोगी मर गया। वेरी गुड। तो जो अर्लियर टास्क है, जो पहला टास्क है, दैट शुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस। द रोगी हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर माय डियर? तो बिफोर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंडेफिनिट में होगा, दूसरा परफेक्ट में होगा। अंडरस्टैंड माय डियर? तो क्या होगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हम ऐसे भी कह सकते हैं बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन द पेशेंट केम द पेशेंट हैड डाइड, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अच्छा, अब बताओ दूसरा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, बताओ। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, बोलो बताओ। The doctor came after Before, after patient the died. patient died. नहीं, The doctor had came before after the patient had died. मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। अब बताओ, पहले कौन सी एक्टिविटी है? डॉक्टर आया है, रोगी मरा है? पहले बताओ। पहले डॉक्टर आया। वेरी गुड। Doctor. जो पहले डॉक्टर, जो पहले काम हुआ है, वो After बनेगा the doctor पास्ट came, परफेक्ट में। the patient had died. अरे, जो पहले हुआ है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पहला फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? द डॉक्टर हैड कम। ओके, डॉक्टर हैड कम, ये होगा पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है, ये सीख लो।
आफ्टर के बाद क्या आता है? परफेक्ट आता है। तो क्या बनेगा? द पेशेंट डाइड, ये तो बाद वाला है। जो बाद वाली एक्टिविटी होगी इंडेफिनिट में, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट बनाओ। मेरे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। अंग्रेजी बनाओ। मेरे The सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। बनाओ अंग्रेजी। The movie start before अब फिर By गलती कर रहे हो। Had मैंने started. कहा पहले तो The movie डिवाइड had- विद The movie had started before I came. दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। The movie had started. The movie had started before Before I go to the cinema hall. गलत बना रहे हो। बिफोर Before movie I had went. started before I reached the cinema hall या went to the cinema hall। गो थोड़ी आएगी भाई, तुमने गो करते हो क्यों आ जाएगा? टेंस नहीं पहचान पा रहे यार? टेंस नहीं आते क्या? सिंपल है, आपने पढ़े होंगे 5 में 6 4th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? हेलो, तो मैंने क्या कहा? आफ्टर मींस बाद में, बिफोर मींस पहले। बात समझ आई आपकी? मैं आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग समझ आ गया ना? हेलो, Yes. Yes, sir. सिंस और फॉर। सिंस आता है निश्चित समय के लिए, जैसे वह सोमवार से एब्सेंट है। अंग्रेजी बनाओ इसकी। वह सोमवार से एब्सेंट है, अंग्रेजी बनाओ। He is absent till Monday. नो, ध्यान रखो, when time factor is here, perfect continuous, he has been He has absent been since Monday। absent. Note down, क्या होगा? He has been absent since Monday। वह कई दिन से एब्सेंट है। She has been absent for many days। For means अनिश्चित समय, since means निश्चित समय, to the point time। since और for का मतलब समझ आ गया ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. understand my dear? Yes, sir.